ಅದೇ ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮವೇ, ಅವನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವೇ ಮನುಷ್ಯನ ಸಿರಿ. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಸಿರಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೆರೆಯಾದ್ರೆ ಆತ ಎಂತಹ ಸವಾಲನ್ನು ಒಡ್ಡಬಲ್ಲ, ಎಂತಹ ಸವಾಲನ್ನು ಒಡ್ಡಬಲ್ಲ. ಅದು ಕೆಂಪೇಗೌಡನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಸರ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅದ್ಭುತ ನಾಯಕ, ಕನಸುಗಾರ, ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಆತನಿಗಿತ್ತು. ಆತ ಕೆಂಗೇರಿ, ಅಲ್ಸೂರು, ಮಾಗಡಿ ಮತ್ತೆ ಕೋಲಾರ ಈ ಸೊಗಡು ಅಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮಗಳ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ಈ ಕೆಂಪೇಗೌಡನ ಕನಸು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಮುಖಂಡರಾದಂತಹ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉದಯ್ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಅವರ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಸೇರಿಗೆ ಸೇರೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ. ನಾಡಿನ ಕಟ್ಟಿದ, ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಇತಿಹಾಸ, ಅವರು ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಹಾದಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಈ ನಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕೊಡುಗೆಗಳು, ಅವರ ದೂರದರ್ಶಿತ್ವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಈ ಸೇರಿಗೆ ಸೇರೆ ಹಿಂದಿಗೆ ಅನುವಾದ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕನ್ನಡಿಗರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಇದನ್ನ ಹಿಂದಿಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಕಿರಾ ಖಾನಂ ಅವರಿಗೂ, ಸಿರಿಗೆ ಸೇರೆ ಕೃತಿಯ ಜಯರಾಮ್ ರಾಯ್ಕರ್ ಅವರಿಗೂ I was reading about Khusro Mirza. Khusro Mirza was the eldest brother of Shah Jahan, and Shah Jahan's name was actually Khurram Mirza. Khusro Mirza was groomed by the Emperor Akbar himself as the grandfather. He wanted him to be the emperor of the Mughal, the next Mughal emperor, because he didn't like Jahangir. For your information, Jahangir was imprisoned in Alwar Fort for 3 years by Akbar. He was imprisoned for 3 years by Akbar because of his habits, because of his lecherous things, so on and so forth. Akbar protected Khurram Mirza to the last times, but after his death, Noor Jahan played a very conspiratorial role in turning the mind of Jahangir to eliminate Christian. And ultimately, Khurram Mirza was eliminated by none other than Shah Jahan. You go to any place, not only Indian history, but any history, such things are common. There are no principles involved. Nothing is involved in this. Only the lust for power. Not judged by reading history which is correct, which is wrong. But history is essential. Without history, history is written not because nowadays we think history is boring. History is, even in education, even in subject as I take it, is least important for history. But history is necessary because it is a guide for the humanity. How do you learn? So Mahabharata may be a myth, maybe an epic, but reading Mahabharata, you can conclude various things. The fight within truth, fight for truth. And there are several other historical books which you can yourself, God has given everybody the power of thinking. So while reading history, you did not take that itself is the right thing, but you can use your thinking capacity to take history and learn from history. History is for always. Dr. Sudha, Principal B.Ed College, Madam, thank you so much for the lovely introduction that you gave. I'm very proud that I have such a good principal of the B.Ed College. The language you spoke, the way you presented yourself, it makes me proud to know that we have such a good principal in B.Ed College.
Our B.Ed college is one of the best in Bangalore University, and we are going ahead. And Dr. Sudha and Dr. Ramesh, who has built it up so far, he is also here. He will also speak to you after some time. Thank you so much, madam, for the lovely speech. Mr. Jairam Raipura sir, I was sitting next to you and I got really impressed and inspired by you. You are so young and you have achieved so much. And the language that you spoke, people say, you know, you can, there's an Urdu couplet that says, you speak beautifully, you can conquer land. That is the Urdu couplet. Sir spoke like that. The way you express yourself in Kannada, I fell in love with the language. Here in Alameen, generally we speak in English and we speak in Urdu. Very just we interact in Kannada. But the way you were speaking the language, the flow that was coming, it seemed so nice. And I wish I had learned Kannada myself. In the school, when we had a selection between Hindi and Kannada, my father insisted that I take second language as Kannada. I studied in St. Joseph Boys High School, ICSE syllabus. So we had Kannada or English, Hindi to use. My father insisted that you should take Kannada since you are in Karnataka, and the language will help you later on. It was a great difficult task for me. Somehow I passed, and all the teachers used to worry whether this fellow will be able to pass because he has no Kannada language background. But somehow we passed, and I learned the language, beautiful language of course, and the names of the poets that you have taken. They are the revered poets in our land. We should all get to know about those people and respect them. मैंने पैगाम नहीं दिया, मैंने रियलिटी सामने रखी है। बताइए सर कि आपने बात, मैं जब तारीख का मुताला करता हूँ उसमें जब केम्पेगौड़ा की तारीख देखता हूँ तो केम्पेगौड़ा की जो तारीख है, जो उसकी कुर्बानियाँ हैं, जो उसने शहर को बसाने का प्लान बनाया है, मुझे इसमें कोई शुबा नहीं है। आप इसका ये कर सकते हैं, शाहजहां के बसाए हुए शाहजहानाबाद जो बाद में पुरानी दिल्ली बन गई, जो चांदनी चौक से निकलकर लेफ्ट साइड में आती है, जहाँ पर चावड़ी बाजार है, खारी बौली है, कुचा चेलान, दरीबा कला है, आप उसको देख लीजिए और केम्पेगौड़ा के बसाए हुए शहर को देख लीजिए, आपको फर्क पता चल जाएगा। केम्पेगौड़ा का शहर जो बसाया हुआ है, मैं वहाँ बचपन से जिया हूँ, वहाँ पर 15-16 साल की उम्र तक। कुमारपेट, चिकपेट, तरकपेट, नगरतपेट और जो है ये तमाम ऐसी खुली सड़कें हैं यहाँ पर, वो आपको दिल्ली में नहीं मिलेंगी। तो ये सिर्फ इतना है कि शाहजहां जो है वो एक शहंशाह था, उसने एक ही काम किया, उसका सिर्फ एक मकसद था कि बहुत बड़ा जो है फोर्ट बना दे। मैं इनडायरेक्टली अगर मैं कहना चाहूँ कि जितने लोग थे, ये जो शहंशाह थे, वो बड़ी हद तक खुदगर्ज थे, जबकि केम्पेगौड़ा ऐसा नहीं थे। ये तो साफ जाहिर है, ये मेरे मुताले से जाहिर होता है। और जिस तरह की कुर्बानी उन्होंने अपने आप को विजयनगर किंगडम को सौंप कर दी और सब्र के साथ वहां रहे 6 साल तक, वो भी एक अपनी मिसाल आप है। और दूसरी मिसाल यह है कि उर्दू वाले खासकर जो कोट करते हैं, तो वो टीपू सुल्तान की एग्जाम्पल कोट करते हैं कि जो उन्होंने 2 बच्चों को यरगमाल रख दिया था वहां पर। लेकिन उससे 1 सदी या 1.5 सदी पहले तो ये काम केम्पेगौड़ा ने किया था। उसके बारे में क्यों नहीं बात करते आप? उसके बारे में इसलिए बात नहीं करते, उसका इल्म नहीं है। इसलिए मैंने जयराम से इनसे रिक्वेस्ट की है कि इसका उर्दू में भी तर्जुमा होना चाहिए। तो और तारीख जो है, आप कहीं की भी तारीख पढ़ लें, अमेरिका की पढ़ लें, बरतानिया की पढ़ लें, फ्रांस की पढ़ लें, ये पढ़ लें, यह बहुत खूनरेज है। वहाँ तारीख से खून टपकता है, और तारीख में कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है, ये खुदा ही को मालूम है। क्योंकि लिखने वाला कौन था? लिखने वाला उसका एक लिखारी था, इसको अदीब कहते हैं। उसने लिखा, उसने अच्छाइयाँ ही बयान की होंगी, बुराइयां नहीं बयान की होंगी। एक बार हम अकबर की बात करते हैं, अकबर को ग्रेट कहते हैं, अकबर द ग्रेट कहा जाता है। इसी तरह अशोक द ग्रेट कहा जाता है। लेकिन अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर हमला किया, मेवाड़ पर हमला किया, राजपुताने पर हमला किया, पूरे राजस्थान पर हमला करके उसने अपने कब्जे में लिया। इसकी बात तो नहीं करते। और अशोका जो है
वो अपने पूरे भाइयों को खत्म करके बादशाह बनाओ। ये बात नहीं कही जाती, क्योंकि उसमें किए आता है एंगल। एक अशोका का जहां तक ताल्लुक है उसमें आता है उसका बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाना। अकबर की जब बात आती है तो उसकी बात आती है दीन इलाही की, कि भाई उसने दीन इलाही का किया। ये केम्पेगौड़ा ने ऐसा कुछ नहीं किया ना, ऐसी तारीख है नहीं ना, आपने सुना नहीं हो, ऐसी कोई चीज तारीख नहीं है। तो उसका एहतराम दिल में और बढ़ जाता है। तो इस सिलसिले में मैं जयराम को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छी पेशकदमी की है इस मामले में। तो आपने कहा कि बेंगलुरु का नाम केम्पेगौड़ा होना चाहिए, क्योंकि बेंगलोर है, उसकी तारीख हमें सही मालूम नहीं है। कोई कहता है इसका नाम बिंदकालूर था, कोई कहता है ऐसा था, कोई कहता था। अंग्रेजों ने उसे बैंगलोर बना दिया, शुमाली हिंद वाले उसे बंगलोर बोलते हैं। ठीक है, अब इलाहाबाद का नाम चेंज हो सकता है, फैजाबाद का नाम चेंज हो सकता है, तो बेंगलोर का क्यों नहीं हो सकता? उसमें क्या कबाहत है? क्या होना चाहिए? हाँ, केम्पेगौड़ा नगर होना चाहिए। जब उसने एस्टैब्लिश किया टाउन, उसके नाम से, देखिए सिटी का जो इलाका है पूरा उसका एस्टैब्लिश किया हुआ है। बाकी कैंटोनमेंट का इलाका है, अब देख लीजिए फ्रेजर टाउन, विलियम्स टाउन, क्लेरलॉन टाउन वगैरह वगैरह, पूरे अंग्रेजी नाम क्यों है? क्यों है? क्योंकि अंग्रेजों ने उसको बसाया। ठीक है, हैदर अली और टीपू सुल्तान का कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने लाल बाग बनाया। और ये जगह जो लमीन बैठे हुए हम, हजरत अताउल्लाह शाह शुत्तारी, नबी शाह शुत्तारी को उन्होंने जागीर में दी थी, क्योंकि अताउल्लाह शाह शुत्तारी जो थे उनके खलीफे थे, उनके बुजुर्ग थे। कहा जाता है कि अताउल्लाह शाह को शुत्तारी से उन्होंने जाके पूछा तृष्णापल्ली जंग जाने से पहले कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, तो उन्होंने कहा मत जाओ। तो ये गए, वहां पर जाके शिकस्त हुई इनकी, जख्मी हो गए, फिर वापस आकर वो उनके मुरीद हुए। ये भी कहा जाता है कि लाल बाग उन्होंने उनके लिए बनाया, अपने दादी के या नानी के नाम पर, जिनका नाम लाल भी था। तो मतलब क्या है, ये जो अच्छा काम है इंसान का वही याद रखने के काबिल है, जो बुरा काम है उसको हम याद नहीं रख सकते। मैं जाती तौर पर न लाल किले से मुतासिर हूं, न ताजमहल से मुतासिर हूं। इन इमारतों का हम क्या करेंगे जब हजारों लोग गरीब हैं, खाने को उनको खाना नहीं है? क्या शाहजहां ने ऐसा कोई काम किया कि जो जिससे लोग भूखमरी से नहीं मरे? या औरंगजेब या जहांगीर ने कोई ऐसा काम किया? ऐसा नहीं किया उन्होंने। तो मतलब यह है कि भाई आपका जो अच्छा काम है वही काम जिंदा रहता है। इंसान की जिंदगी बहुत महदूद है, 90 ईयर्स आप लिएंगे, 100 साल जिएंगे, 120 साल जिएंगे, लेकिन आपने लोगों के लिए क्या किया है और अपने आप को किस तरह से, क्योंकि जिस्म तो फानी है, जिस्म तो फानी है, और आप कब तक जिंदा रहेंगे, आप कब तक खाएंगे ये करके? आप अब कहाँ चला गया आपका लाल किला, कहाँ चला गया कोहिनूर? कोहिनूर कहाँ है? अंग्रेजों के पास है वो। ಬಹಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳೇನಿದೆ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಟ್ಟಣಗಳು ನಮಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಾಂಬೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನೈ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೇ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪಟ್ಟಣ ನಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಚ್ಚ ಭಾರತೀಯ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ. ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನೇ ತನ್ನ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿದಂತ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ ಅದು. ಅವತ್ತು ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 176 ಎಕರೆ ಒಂದು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟಿ, ಆ ಕೋಟೆ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉದ್ಯೋಗದವರಿಗೆ ಒಂದು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಪೇಟೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಕುರಿತು ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಏನ್ ಸೆರವಾಸದಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನಾಟಕವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ನಾನು ಸಿರಿಗೆ ಸೆರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಕಿರಾ ಖಾನಮ್ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಇವತ್ತು ಉರ್ದು ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಈ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಏನೊಂದು ಉದಾತ್ತ ಚರಿತ್ರೆ ಏನಿದೆ, ಆ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರಿಗೆ, ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಂಪೇಗೌಡನ ಉದಾತ್ತ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದೇಶ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಒಂದು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಧರ್ಮ ಅವತ್ತು ಅಷ್ಟೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲ ಆಗಿದ್ರಿಂದ, ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಏನಿದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸರಣ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಿ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವತ್ತು ಸರ್ವಜನಾಂಗ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಆವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನ ಕೋಟೆ ಒಳಗೆ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆ ಭಾವನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಭಾವನೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇವತ್ತು ಇರ್ತೀವಿ, ನಾಳೆ ಇರ್ತೀವೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಏನಿದೆ, ಈ ಭಾವನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೊಂದು ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿಸಮಾನರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರ ಜೀವನ ಆಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರ ಏಳಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಏನಿದೆ, ಈ ಭಾವನೆ ಏನಿದೆ, ಈ ಭಾವನೆ ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಭಾವನೆ ಏನಿದೆ, ಈ ಭಾವನೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ದೇಶ ಕಟ್ಟುವ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. जयराम रायपुरा सर ने लिखा है, ये बहुत ही अच्छी किताब है। हम लोग केम्पेगौड़ा के बारे में हर जगह उनका नाम रखकर उनकी मूर्तियां बनाकर हम लोगों को ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मैं ये चाहती हूँ कि केम्पेगौड़ा ने उन्होंने कोई युद्ध नहीं किया, कोई हिंसा नहीं की, किसी भी प्रकार का अत्याचार अनाचार नहीं किया। उनका उद्देश्य केवल इतना ही था कि इंसानियत रहे, मानवता इस संसार में रहे। जिस प्रकार अशोक का मन परिवर्तित होकर उसने कलिंग युद्ध के बाद अपना मन परिवर्तित कर लिया, अगर चाहता तो वो कलिंग युद्ध रोक सकता था, मगर यहाँ पे केम्पेगौड़ा ने युद्ध करने के बजाय, वो एक छोटे से सामंत थे और विजयनगर की परंपरा तो पूरे विश्व विख्यात थी। उस परंपरा को चुनौती देना अगर हो सकता तो दे सकते थे, मगर उससे काफी जानो माल का नुकसान होता था। तो उन्होंने क्या किया, जब अपने पुत्र को बंदी बनाकर भेजने की जब बात आई तो उनकी दूरदृष्टि बहुत गहरी थी। अगर वो नौजवान अगर चला जाएगा तो समाज को कौन चलाएगा, राज्यभार कौन करेगा। उससे बेहतर है कि मैं ही अगर बंदी चला जाऊं तो मेरी देश की जिम्मेदारी या उनके राज्य की जिम्मेदारी एक नौजवान पर पड़ेगी। ये उनकी दूरदर्शिता थी। मतलब इससे ये पता चलता है कि एक समय के बाद हम लोग हमारे नौजवानों को जिम्मेदारी देने की हमें कोशिश करना चाहिए। ये कैंप में काफी इतिहास थोड़ी बहुत जानकारी रखती हूँ, मगर ये नाटक मेरी आंख खोल दिया। मुझे ऐसा लगा कि ऐसा व्यक्तित्व अधिपत बड़ा कत्लो अंतरला, ऐसा व्यक्तित्व यानी अपने घर का चिराग ही अंधेरा देता है। तो ऐसा व्यक्तित्व हमारे समाज में, हमारे पास, हमारे ही संस्कृति में होते हुए हम लोग कहाँ बड़े बड़े व्यक्तित्व को हम कैसे ढूंढ रहे हैं। तो केम्पेगौड़ा एक ऐसा व्यक्तित्व था जो इंसानियत की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए वो खुद एक बंदी बन के चला जाता है, युद्ध नहीं करता, हिंसा नहीं करता, ये है। और दूसरी बात यहाँ पे, ये जिस तरह कुवेंपु ने कहा कि सर्वजनांगद शांति तोटा, तो अगर केम्पेगौड़ा अगर चाहते तो हर जाति के आधार पर एक एक राज्य या एक एक इलाका बना सकते थे। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक एक कारीगर के हिसाब से, जैसे कि तरकपेट है, बड़े पेट है, अक्की पेटे है, कुंभार पेटे है, इस तरह यानी कसूबी ना आधार पेशे के हिसाब से उन्होंने राज्य अपने अपने इलाके का ये किया। और दूसरा, हर चीज उनकी दूरदृष्टिता बहुत गहरी थी, यानी उन्होंने बहुत आगे का सोचा। हम लोग देख सकते हैं बॉम्बे, हम कहते हैं कि बहुत ही विश्वविख्यात नगर है, मगर बॉम्बे की सीमा बहुत छोटी है, मगर ये केम्पेगौड़ा की जो दूरदृष्टिता की, ये जो बेंगलुरु की सीमा जो है वो असीम है, वो और बहुत बढ़ सकता है। वो अपने में सब कुछ बनाने की कोशिश, लेने की कोशिश करे। और सबसे बड़ी बात, मैं इस पुस्तक के माध्यम से सर की अनुमति से, जैसे खलील मामून सर ने कहा कि मैं सरकार से ये दरखास्त करती हूँ कि बेंगलुरु का कोई अर्थ नहीं है। केम्पेगौड़ा का नाम हमने बहुत देख लिया है, मगर ऐसा व्यक्तित्व मैं समझती हूँ कि ऐसा हीरा हमारे समाज में है, तो इनके नाम से हम बेंगलुरु का नगर नामकरण कर सकते हैं। ये मेरी गुजारिश है। और ये पुस्तक हिंदी की है, और हिंदी पूरे देश की भाषा, कन्नड़ भी हमारे देश की भाषा है। ये काफी लोगों तक पहुंचे, क्योंकि कन्नड़ की मिट्टी की जो खुशबू है ये पूरे देश में फैलने की कोशिश करे। ये मेरी बात है जी। केम्पेगौड़ा के बारे में हम कहेंगे तो यहाँ पे मैं जो ये नाटक का अनुवाद करते समय मुझे कहीं भी इस तरह की भनक कहीं भी नहीं लगी। उनका उद्देश्य मतलब यहाँ पे है कि आदमी जब आगे की सोचता है तो एक आंधी की तरह उसको आगे जाना पड़ता है, क्योंकि उसका लक्ष्य
तरक्की करने का होना पड़ता है। तो केम्पेगौड़ा की ये विशेषता ये है कि वो सबको साथ लेके जाता है, ये विशेषता है। इनको ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं कहता, क्योंकि और ये बहुत बड़ा अच्छा नायक भी था। कालना बोल के किसमें चरित्र आता है, तो जब बाहर वाले आके उस पे हमला करते हैं, हमले करने की बात होती है, तो वो लोग कहते हैं कि हम पलायन कर लेंगे, हम गांव छोड़कर चले जाएंगे। तो अगर दूसरा अगर राजा अगर होता तो उन्हें दंड देता या उन्हें कारागृह में डाल देता, आप इतने गद्दार हो। मगर केम्पेगौड़ा की इंसानियत, आज के नायकों में ये विशेषता होनी चाहिए। वो कहता है अच्छा आप जाते हैं कहीं, कहाँ जाएंगे, तो बेहतर है आप चंदपटना चले जाइए, वहां पे आपके लिए सुरक्षित है। ये ऐसा कौन बोलेगा, कौन सा राजा बोलेगा? तो ये केम्पेगौड़ा मैं समझती हूँ कि आज के नायकों के लिए एक मार्गदर्शन की तरह इसको रख ले और इस तरह का शासन करे, तो शायद हमारा देश और आगे बढ़ पाएगा।